So this is the second part of equilibrium, whose name is acid base and equilibrium previously. So acid base सबको पता होना चाहिए क्या होता है, what is acid, what is base, सबको पता है. Anyone define what is acid? Sir, acid which ionizes in water to give H plus ions. Okay, one answer. Anyone else? Anyone else? और कुछ? Come on, participate. What is base? Sir, base ionizes in water to give OH plus ions. OH minus ions. So this is the answer. Anyone else want to add or subtract something? Nothing. Okay then. So acid और base का आंसर क्लास 9-10 तक बहुत इजी था हमारा. 9-10 में हम लोग ऐसा कह देते थे acid is a substance which is corrosive, that's all, or which produce H plus ion, that's all. But in class 11 and 12 we need a complete understanding of acid and base, because now we understand what is atom, what is molecule, what is ions, how they react, what is their physical significance and all these things. So acid का 3 concept है acid and base का क्लास 11-12 के लिए. सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ये काफी फेमस कॉन्सेप्ट है और ये हम लोग क्लास 9-10 तक पता था हम लोग. दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. ओके, रिमेंबर एग्जाम में पूछता है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिड और बेस. सो नाम याद रखना, फर्स्ट इज आर्हीनियस कॉन्सेप्ट. आर्हीनियस ने एसिड को क्या कहा? एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड इज अ सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस H plus ion in aqueous medium as the only positive ion. मैंने यहाँ clearly bold करके लिखा हुआ है as only positive ion. अगर ये नहीं लिखोगे तो पूरा गलत हो जाएगा. So दीपक ने आंसर तो करेक्ट दिया था बट ये चीज मिसिंग था. So suppose this is a substance HCl, when it is present in water or better to say aqueous medium, then it produces H plus and Cl minus, where this H plus is the only positive ion. Therefore, HCl is an acid. Similarly, HNO3 when given in water medium, then it produces H plus again as the only positive ion and no other positive ion. Therefore, HNO3 is also an acid according to Arrhenius concept. Is it okay? Acid क्या है? Ahili, is it clear to you? Yes, sir. Okay. So yes, next is base. What is base? Base is a substance which can produce OH minus ion. OH minus ion को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री में इसका नेम क्या है? OH माइनस का नाम क्या होता है? सर हाइड्रोक्सी. यहाँ लिखा हुआ है, देख के तो बता दो. हाइड्रोक्सिल आयन. ओके, OH माइनस और बेटर टू से हाइड्रोक्सिल आयन, बट एज अ ओनली नेगेटिव आयन. अगर ये नहीं लिखोगे अगेन गलत हो जाएगा. सो समथिंग विच प्रोड्यूस OH माइनस आयन in aqueous medium as a only negative ion, then it is a base. For example, NaOH. देखो NaOH ब्रेक होता है तो Na plus और OH माइनस बनाता है. yes, sir. सिमिलरली मुझे बताओ CaOH होल्ट वाइज ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा? Sir, Ca2 plus OH2 minus. Is it? Is it? Anyone else? Ca2 plus and? So 2OH minus. Yes, 2OH minus, not OH2 minus. ओके, तो यहाँ पे भी देखो OH माइनस जो है ये ओनली नेगेटिव आयन है. Therefore, CaOH whole twice is also a base. I hope now you understand what is acid and what is base. And in the similar concept, please मुझे बताओ कि H3PO4 is it an acid or a base? Sir, acid. Is it acid? Okay. Because it produce something like, कितना सारा H plus निकलेगा इसमें से? Sir, 3. Yeah. So this is 3H plus PO4 3 minus. Okay.
नाउ एंड अगर मैं बोलूं Al OH whole thrice, is it a acid or base? So it is a Sir, it base. is base. And it break like this, Al3 plus 3OH minus. Now it is very important how to break them. Okay, ये break जो कर रहे हैं ना, ये break करना तुम लोग को भी आना चाहिए, ठीक है? Okay, Yes sir. so Arrhenius concept समझ में आया, Sir, लेकिन H yes प्लस वाले को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं ना? yes yes yes, और उसको सिंपली हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं, उसके बारे में मैं आ रहा हूँ, अभी यहीं पे आएंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक चीज प्रॉब्लम्स देखो क्या क्या है। ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा लिमिटेशंस है, प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहला बात कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है, हम लोग तब तक नहीं कह सकते जब तक मैं उसे एक्वस मीडियम में ऐड ना कर दूं। सो फॉर नॉन एक्वस मीडियम समथिंग इज एसिड और बेस, इट इज नॉट क्लियर, isn't so? Suppose what is HCl gas? HCl in the gaseous form, is it acid or not? What is your So answer? it is acidic gas. How you justify it is acidic gas? So because HCl in aqueous solution is acidic. But it is not in the aqueous solution, it is in the gaseous phase. So in gaseous state, HCl is not acidic. Okay, Anand says it is not acidic, Deepak said it is acidic. Now voting system, Ahili, तुम्हारा वोट किसको जा रहा? It is Sir, acidic or it's not? acidic. It's acidic. Acidic. Majority is wrong. It is not acidic. According to Arrhenius concept, Yes, it is when not acidic. HCl is in the gaseous form, it is not acidic. Not acidic, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सच में acidic नहीं होता है. But according to Arrhenius concept, it is not acidic. But actually, in real case, yes, it is acidic. इसका एसिड वाला सारा प्रॉपर्टी रहता है, बट हम लोग इसको एसिड Yes, नहीं sir. बोल सकते। रीजन क्या है इसको एसिड नहीं बोलने का? क्योंकि HCl गैस जो है ये ब्रेक डाउन नहीं होता है H प्लस आयन में। दैट So इज इसमें व्हाई रोजाना से इरिटेशन होने लगता है ना HCl गैस से? बिल्कुल बिल्कुल वो होगा। सो HCl in the gaseous form is not acidic according to Arrhenius concept. Okay, similarly some substance which do not contain H plus ion are still acidic in reality, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने का के लिए कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है आर्हीनियस के पास। फॉर एग्जांपल AlCl3, BF3, दे आर एक्चुअली एसिडिक इन नेचर। जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी है इनका वो एसिडिक नेचर का है, लेकिन इनके पास H प्लस आयन तो है ही नहीं, तो कैसे एक्सप्लेन Yes, करोगे sir. कि ये एसिड है? Isn't it? सिमिलरली कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसके पास OH माइनस नहीं है, जैसे कि NH3 और PH3, बट दे आर एक्चुअली बेसिक, but they do not contain OH minus ion. So how to explain they are basic in nature? Arrhenius unable to explain these facts. And one last thing, Arrhenius failed to explain how H plus ion is actually exist in water medium. Because H plus ion means what? Look, तुम लोग को पता होगा 1H1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा Yes, होता है sir. 1s1. Yes. इसका मतलब है इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? और So ऐसा 1. होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 1 और नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया इसके पास 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया? 0. 0. ओके, तो ये कुछ ऐसा दिखता होगा, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है। नाउ H प्लस का मतलब क्या हो गया? H plus means So see proton. that electron is also removed, means only one proton is available. So H plus ion is nothing but a proton. A nucleus which contain only one proton means it is simple a proton. So H plus ion is nothing but a proton. So how a single proton exists in water, it is not explained by Arrhenius. ये इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो तुम लोग इसको अच्छे तरीके से स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट मैंने किया, इसको अच्छे से कॉपी में लिख लेना। इज इट ओके? लिमिटेशन समझ में आया? इस लिमिटेशंस को रिमूव करेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमारा था, स्टेबिलिटी ऑफ H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम, इसको एक्सप्लेन हम लोग ऐसे कर सकते हैं दैट H प्लस आयन इज नथिंग बट अ प्रोटॉन। मैंने ऐसे ही कह दिया ऑलरेडी। सो ये H प्लस जो है
ये वाटर के साथ कॉम्बाइंड हो जाता है और कॉम्बाइन होके हाइड्रोनियम आयन बनाता है विच इज H3O+। ओके, सो अब मैं जितना बार भी लिखूं या तुम लोग के बुक में जितना बार भी H+ लिखा हो या फिर H3O+ लिखा हो, दोनों का सेम मीनिंग होगा ऑलवेज। ऐसे कभी मत सोचना कि H3O+ Yes, sir. लिखा है मतलब H+ अलग होता है। नो, H3O+ स्टैंडर्ड बुक में लिखा जाता है। रीजन ये है कि H+ तो एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्चुअली ये कॉम्बाइन होके H3O+ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड प्ले द सेम रोल एज प्रोड्यूस्ड बाय H+। इज इट ओके? हेलो? Yes, sir. ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, हाउ H+ आयन इज स्टेबल इन एक्वस मीडियम। सो जस्ट ये स्टेटमेंट मैंने लिखा है, एक बार सुन लो। अ बेयर प्रोटॉन H+ is very reactive and cannot exist in free form in aqueous solution. Thus, it bonds to the oxygen atom of the solvent water molecule to give trigonal pyramidal hydronium ion H3O+, which is exist in this case. In this chapter, we shall use H+ ion, and ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग के लिए मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया था कि इस चैप्टर में हम लोग जहां भी H+ आयन लिखे या H3O+ आयन लिखे, इन दोनों का सेम मतलब है। तो तुम लोग को जस्ट यहां से यहां तक आंसर करना है। Is it okay? Okay, so next concept is Bronsted-Lowry concept, or better to say इसको simply Bronsted concept भी कहा जाता है। More simply, it is just Bronsted concept, but actually two scientists are involved, Bronsted and Lowry. Bronsted concept से acid क्या है, इसको ध्यान से सुनो, जिसको डाउट होगा मुझे अभी इंटरप्ट करना। What is acid? According to Bronsted concept, acid is a substance which has a capability to donate a proton, and you already know proton मतलब क्या होता है? H+। Sir, positive. H+ simply बोल सकते हैं साधारण भाषा में। Yes, sir. So acid is a substance which has the tendency to donate a proton, जो डोनेट कर रहा है या फिर उसके पास टेंडेंसी है डोनेट करने का, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग एसिड बोलेंगे। ओके, और बेस उसका उल्टा हो जाएगा। बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज अ टेंडेंसी और कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। इज इट ओके? Sir, वो accept कैसे करता है? देखेंगे हम लोग, एग्जांपल में ले रहा हूँ, डोंट वरी। इस कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा इशू ये है कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को देख के नहीं बता सकते ये एसिड है या बेस। इसके लिए हमें एक केमिकल इक्वेशंस का हेल्प लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, Yes, sir. फॉर द टाइम बीइंग, सपोज रिएक्शन ऑफ HCl विथ वाटर। So when HCl react with water, it produce H3O+ ion and Cl-. Is it okay? So what happen here? ये जो एसिड है HCl, इसने क्या किया? इसने डोनेट कर दिया, डोनेट its H+ ion. Yes or no? So HCl donate its H+ ion and becomes Cl-. Similarly, water, what happen? Water can accept here a proton and form H3O+ ion. Is it okay? आइली, Sir, base वाला क्या हुआ? सब समझ में नहीं आया। मैं आ रहा हूँ। ये समझ में आया कि नहीं? इसने अपना H+ डोनेट किया है, समझ में आ गया। HCl अपना H+ डोनेट करके Cl- बनाया, और ये H+ किसको डोनेट किया? वाटर को ना। हाँ, तो वाटर इसका H+ ले लिया ना, so water is accepting a proton or simply H+ and form H3O+. So if something accept proton, it become a base, and if something donate a proton, then it become a acid. So in this reaction, HCl is acid and water is a base. Is it okay? Yes, sir. Okay. Next is base. बेस का एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर एक ऐसे एग्जांपल वाटर के साथ NH3 का रिएक्शन देखते हैं। नाउ इस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो बन रहा है वो NH4+ हो रहा है और OH- हो रहा है। तो हम लोग यहाँ ध्यान से देखो तो पता चलेगा इस H2O ने
अपना H+ डोनेट किया है, दैट इज वाई ये OH- में कन्वर्ट हो गया है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ये H2O जो है ये डोनेट किया है, इट्स H+ और सिंपली प्रोटॉन, यस, एंड दिस NH3 is except one proton. यस सर, समझ में आया सर। So NH3 अगर एक्सेप्ट किया तो ये बेस बन गया, और वाटर ने डोनेट किया तो ये एसिड बन गया। नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, देखो दोनों रिएक्शन को ध्यान से देखो, तो एक बार वाटर जो है ऊपर वाले रिएक्शन में बेस बना हुआ है, और वही वाटर नीचे वाले रिएक्शन में एसिड बन गया, isn't it? तो यस सर। ये इस कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट का ये लिमिटेशन है। सर ये क्या BF3 और वो जो हमने पढ़ा था उसका एक्सप्लेन कर लेता है? नहीं, अभी हम लोग आ रहे हैं, दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट। इससे भी हम लोग कर सकते हैं, बट बेटर आंसर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। सो इन अ ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, समथिंग इज बिहेव्स लाइक अ एसिड और बेस डिपेंडिंग on the substance to which it is reacting. According to Bronsted and Lowry concept, कोई भी substance acid या base इस basis पे behave करता है कि वो किसके साथ react कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पर HCl जो है ये एक strong acid है, yes or no? Practically we know it is a strong acid. So when a strong acid behave with an amphoteric substance, then obviously it behaves as acid. Similarly NH3 हमें पता है ये एक तरह का अच्छा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बिहेव कर रहा है मेरा वाटर के साथ, तो ये मेरा हो जा रहा है बेस। तो इस कॉन्सेप्ट से तुम लोग से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या H2SO4 कभी भी बेस की तरह बिहेव कर सकता है क्या? कैन H2SO4 बिहेव लाइक अ बेस? इज इट यस और नो? नो सर, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, एनीवन एल्स? स्वयं? हाँ सर। H2SO4 बेस की तरह बिहेव कर सकता है? सर वो एसिड है तो नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है फिर। किसी को समझ में नहीं आया अभी मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा यहाँ पे ध्यान से देखो, जब भी कोई चीज जैसे वाटर, ये ना स्ट्रॉन्ग एसिड है ना स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो न्यूट्रल चीज है, तो इस न्यूट्रल चीज को मैंने जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट करवाया तो ये बेस जैसा बिहेव किया, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करवाया तो ये एसिड की तरह बिहेव किया। तो अगर मैं H2SO4 को इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट करवा दूं, तो H2SO4 से भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसको मैं रिएक्शन करूं तो क्या होगा? सर HCl के साथ। HCl है या बात कुछ और है, वो मैं बाद में आ रहा हूँ, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। When सर तब ये बेस H2SO4 बन जाएगा तो उसको डोनेट करना पड़ेगा। when H2SO4 react with stronger base, sorry, stronger acid than it, then obviously according to Bronsted concept उसको उस वक्त H+ गेन करना पड़ेगा, और HCl नहीं होता है H2SO4 से स्ट्रॉन्गर, कुछ और होता है, ये ढूंढो तुम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो एक क्वेश्चन लिया हुआ है, सर HNO3। मैंने कहा ढूंढो। ओके, हर चीज अगर तुम लोग को ऐसे मिलने लगे ना फ्री में, तो फिर पढ़ाई करके लाभ क्या होगा? पर क्लोरिक एसिड का नाम मैंने बताया, इसको ढूंढना और उसका स्ट्रेंथ पता करना कितना होता है। सो मैं एक स्क्रीन ले रहा हूँ और तो तुम क्या लोग एसिड मुझे, है फिर से बोलिए। पर क्लोरिक एसिड, ओके। सो एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग मुझे बताओ क्या होगा। NaOH react with CH3COOH. What will be its product? Anyone? सर CH3COONA plus H2O CH3COONA plus plus H2O। H2O. Yes, correct. This is the answer. Now, in this reaction, which one is acid and which one is base? Sir CH3COOH is acid and NaOH is base। Is it? Anyone else? सही है? Yes. So look, CH3COOH remove its H+. Okay? So मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये डोनेट किया अपना H+ आयन
So if someone is donating, it means it is acid, and obviously donate किया है तो सामने वाला उसको accept किया है तो वो बन गया base. Is it okay? Okay, take another example. Suppose HF react with NH3. So what will be the product? Anyone? It is NH4 plus F minus. Now यहाँ बताओ कौन सा एसिड है कौन सा बेस है? अनंत बताओ, मैं जिससे पूछूंगा वो बताओ. अनंत बताओ इसमें कौन सा एसिड है बेस है? Sir, सी को टारगेट करो ना, देखो acid, क्या कर रही है बताओ. sir, HF है acid और NH3 है बेस. आइली करेक्ट है? अनंत ने जो आंसर किया करेक्ट है या रॉन्ग है? Sir, I think NH3 is acid. Yeah. Yeah. So NH3 is base. Here NH3 accept H plus ion and HF donate H plus ion, so it is a base. So it is the simple concept of bronze state. I hope everyone understand two concept of acid and base. One is Arrhenius, another is bronze state. In bronze state concept, we have a very important thing which is called conjugate acid base pair. और यहाँ से ना MCQ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है? इस लेक्चर में हम लोग के पास जस्ट 3 मिनट्स बचा है, थोड़ा सा देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे. सो अगर कोई सब्सटेंस, ध्यान से इसको सुनो, पहले कॉन्जुगेट एसिड क्या है इसको देख लो, या कॉन्जुगेट बेस क्या है एक समझो. तो सबसे पहले इजी वाला लेते हैं, कॉन्जुगेट बेस क्या है. व्हाट इज कॉन्जुगेट बेस? एसिड का टेंडेंसी क्या होता है हमारा? दैट इट डोनेट H प्लस, राइट? सो एसिड अपना H प्लस डोनेट करने के बाद जो भी रिमेनिंग चीज बचा रहेगा उसके पास इन द फॉर्म ऑफ माइनस, क्योंकि H प्लस डोनेट किया तो यहाँ माइनस होगा, दैट रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड. सर एक बार फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए. फॉर एग्जाम्पल HCl डोनेट इट्स H प्लस आयन, रिमेनिंग क्या बचता है इसके पास? Cl माइनस. सो Cl माइनस इज कॉन्जुगेट बेस of acid HCl. HF when donate its H plus ion, remaining part become F minus. So F minus को मैं बोल सकता हूँ conjugate base of HF, क्योंकि ये एक मेरा क्या है? एसिड है. So कोई भी एसिड अपना H plus डोनेट करने के बाद बाकी जो भी बनता है उसको हम लोग कहेंगे conjugate base of that acid. Is it okay now? स्वयं समझ में आया? हाँ सर. तो बताओ मुझे HNO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्वयं बताओ, कोई और मत बताना. HNO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? सर सर कैन आई ट्राई? Let him answer. NO3. Let him answer. Yes, स्वयं H प्लस डोनेट होगा, उसके बाद क्या बचता है? सर H प्लस डोनेट होगा तो NO3 माइनस. H plus and NO3 minus, right? Yes sir. हाँ So सर. this NO3 minus is conjugate base. Conjugate base of HNO3. So simple. So आहिली मुझे बताओ H2SO4 का conjugate base क्या होगा? Yes, आहिली, conjugate base of H2SO4. Sir, Sorry. SO4. SO4 2 minus. Sir, one I will also try. Conjugate base of H2SO. Okay, I'll send you another link to join. Okay, ये लेक्चर अभी खत्म हो रहा है, मैं another link दे रहा हूँ. Okay then.